Hello children, welcome back to your maths class. Let us start today's video. Class 4, subject mathematics, chapter 5, data handling, and this is our revision summary lecture number 1. Children, in this lecture I'll summarize the chapter number 5 which we have done earlier, and we have done this chapter. Today I'm going to summarize it in front of you. In this I will repeat all the topics which we have done in this chapter. So let us start. In this video our subtopics are as follow: pictograph and then bar graph. Basically though there are only two main topics in this chapter. That first one is pictograph and the second is bar graph. Additionally I'll introduce how to draw bar graph. Okay children, so let us take example. The pictograph given below shows the number of books of particular subject in a library. Give answer of the following questions. This is the pictograph. On the basis of this pictograph you have to answer some of the questions that are asked to you. Here the column of subject is given up, and this side pictures are drawn of the books. Here the key is must read. Here one book stands for 10 books. एक book जो है वो 10 book के लिए stand करती है. So give answer of some of the question. Number 1, how many books are there of mathematics? Mathematics की कितनी books हैं? Number 2, which subject has maximum number of books? ऐसा कौन सा subject है जिसकी सबसे ज़्यादा book यहाँ पर available है? Okay, so let us see how many books are there of mathematics. Mathematics की कितने books हैं? Let us see. This is the column of mathematics. Here 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 multiplied by 10 is equal to 50. So total 50 books are there. Number 2, which subject has maximum number of books? ऐसा कौन सा subject है जिसमें maximum number, सबसे ज़्यादा, maximum होता है सबसे ज़्यादा, तो maximum number of books available है. So it is clearly visible. इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बुक्स अवेलेबल, बट नॉट आस्किंग अबाउट द नंबर. ये हमसे नंबर नहीं पूछ रहे कि कितने बुक्स अवेलेबल हैं, ओनली आस्किंग अबाउट कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी बुक्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल है लाइब्रेरी में. तो जिसके पिक्चर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें प्रेजेंट की जाएंगी. दीज आर द मैक्सिमम इन नंबर. वो सबसे ज़्यादा होंगी. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो it's clear that there is the book of English maximum in number. So here we will write English. Next is the pictograph given below shows the number of cars sold by Maruti Limited in month of March. Give answer of the following questions. मारुति लिमिटेड ने कुछ कार्स पर्टिकुलर मंथ में सोल्ड किए हैं. उसका ये जो पिक्टोग्राफ आपको बना के दिया है. नाउ लेट अस सी द की. हियर इन दिस की 1 कार स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. मीन्स जो एक कार है वो 100 कार्स के लिए स्टैंड करती है. एक कार का मतलब सिर्फ एक कार ही नहीं है, उसका मतलब हो गया 100 कार्स. एक कार से 100 कार को यहाँ पे डिनोट किया गया है. ओके, सो चिल्ड्रन नाउ we have to give answer of some questions. Let us see the question. First question is, how many Maruti Wagon-R sold? Number 2, which model sold the most? So children, here we have to tell कि Maruti Wagon-R कितनी sold की गई है. So Maruti Wagon-R का जो column है, here it is. Now let us count 1, 2, 3. 3 car. 3 multiplied by 100 as one car is standing for 100 cars. So, एक से सिर्फ एक को डिनोट नहीं करेंगे आप, एक से 100 को डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो इट मीन्स टोटल 300 cars. Which model sold the most? ऐसा कौन सा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा बेचा गया है, मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा कार्स
बिकी हैं। ओके, वो सबसे ज़्यादा, जो भी मॉडल जिसके सबसे ज़्यादा कार्ड्स की सेल हुई है वो सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला मॉडल है। तो ऐसे कौन से कार का मॉडल है जो सबसे ज़्यादा जिसकी सेल हुई है? दैट इज़, as you can see, 1 2 3 4 5 Maruti Zen and 1 2 3 4 5 मीन्स मारुति ऑल्टो और मारुति जेन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्स हैं। इसमें कम है, इसमें भी कम है, एंड मारुति 800 भी कम है, बट मारुति जेन एंड मारुति ऑल्टो में सेम नंबर ऑफ कार्स हैं। तो इन आंसर यू विल राइट मारुति जेन एंड मारुति ऑल्टो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड की गई हैं, इक्वल नंबर के अकॉर्डिंगली। ओके, सो बोथ would be in the answer. Now let us see, the graph given below shows the favorite fruits of children. One random research was done in the classroom, and some data was collected on the behalf of children, their preference of food, their favorite fruits, preference of fruits. तो कुछ बच्चों से पूछा गया उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में। तो जो बच्चों ने बताया कि उनके कौन से फेवरेट फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बेसिस पे एक बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है। दैट इज एज इट्स शोन हियर दिस साइड इट्स मेंशन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this side, as I have discussed it with you earlier, on the standing line we display number, on the sleeping line, horizontal line, we write names. So here the names of fruit: peach, apple, orange, lychee and papaya. Peach liking children are these, apple liking these, orange these, lychee these and papaya these. तो ये बच्चों की बार ग्राफ बनाया जो बच्चे जिस फ्रूट को लाइक करते हैं। On the basis of this bar graph, some questions can be asked that may be like this. Number 1, which fruit do children like the most? Here you have to write answer. Number B, which fruit do children like the least? Okay, and the next is, how many children like apple? Okay, these three questions you have to आंसर ऑन द बेस ऑफ दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के बेस पर आपको इन 3 क्वेश्चन को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्रूट डू चिल्ड्रन लाइक द मोस्ट? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? चिल्ड्रन, एज आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग अर्लियर, जिसका ग्राफ सबसे टॉप पर होगा, मीन्स हाइट वाइज सबसे ऊंचा होगा। ओके, जिस ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज द मोस्ट preferred, or you can say most likely. In this bar graph, as you can see it clearly, this graph and this graph, these both are looking similar, but I have guided you earlier कि आपको क्या करना है, you have to use a scale for measuring the graph. It could be look similar, but there must be some difference. आपको कुछ difference फिर भी मिलेगा. I am using a rough sketch to maintaining it. Yes, if you will see it properly, then yeah, it's something like on 8, and now it is clear this is lying on 9. अब आपको हाइट में डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। ओके, लुक, दिस इज, ये वाला थोड़ा अप हो गया। दिस लीची बार इज ऑन 8 and peach on 9, so there is difference. Okay, now it is clearly visible. पहले वो अच्छे से clearly नहीं दिख रहा था, but it's clear. So better to take help of scale, so you can't avoid mistakes को avoid करने के लिए better है कि आप scale का use करो उसको measure करने के लिए। Fine. Now in the question it was asked, which fruit do children like the most? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो जिसका ग्राफ सबसे टॉप पर होगा, जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा होगा हाइट वाइज, ओके, दैट इज द मोस्ट लाइकली. सो मोस्ट लाइकली इज पीच. पीच को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं. हम यहाँ पे राइट करेंगे पीच. इन द नेक्स्ट वन, विच फ्रूट डू चिल्ड्रन लाइक द लीस्ट?
लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको बच्चे सबसे ज्यादा सबसे कम पसंद करते हैं? जिसका ग्राफ सबसे स्मॉल होगा दैट वुड बी द लीस्ट लाइकिंग। सो इन दिस वन you can get confused with orange. This is approx 6, means it is lining, so it is not properly straight. And yeah, now you can see the difference. इसमें और इसमें difference है. It means it's clearly visible that papaya is the least liked by children. Here the answer would be papaya. Okay, क्योंकि papaya का ग्राफ सबसे छोटा है, सबसे हाइट वाइज सबसे छोटा ग्राफ है. ओके, सो आंसर आपका होगा पपाया. इफ इट इज आस्किंग अबाउट सेकेंड लीस्ट लाइक्ड फ्रूट, मीन्स ऐसा फ्रूट जिसको दूसरे नंबर पे सबसे कम लोग पसंद करते हैं, सबसे कम बच्चे. सो हियर देन यू वुड से इट्स ऑरेंज. मीन्स सबसे छोटा तो पपाया का है, लेकिन फिर उससे थोड़ा बड़ा किसका है? ऑरेंज का. इट मीन्स सेकेंड लाइकली, सेकेंड लीस्ट लाइकली. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक एप्पल. ऐसे कितने बच्चे जो एप्पल को लाइक करते हैं? एप्पल ही उनका फेवरेट फूड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेयर इज द बार ग्राफ ऑफ एप्पल. हियर इट इज. या सो इट इज ऑफ 7 चिल्ड्रन लाइक एप्पल. टोटल 7 बच्चे जो एप्पल को लाइक करते हैं. चिल्ड्रन इन दिस वन यू वुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ की. इसमें आपको कोई की नहीं मिलेगी. आपको जस्ट क्या करना है, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग मूव करना है. एंड कीप रिमेंबर, जो आपका स्केल है वो रेगुलर नंबर्स में होगा. मीन्स अगर आप इंटरवल ले रहे हो 100 100 10 10 तो वो रेगुलर होना चाहिए. अगर आप सीरियल वाइज नंबर ले रहे हो तो वो रेगुलर. ये नहीं कि आपने यहाँ पे 1 राइट किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. नो, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड. इफ़ यू आर टेकिंग गैप्स, मीन्स 10 10 का गैप्स, तो सारे में 10 10 का गैप्स होना चाहिए. इफ़ यू आर टेकिंग गैप ऑफ 5 5, ऑल मस्ट कैरी द गैप ऑफ 5 5. So be aware about it. Got it, children? Now let us take homework. Here this one is done. I hope you have understood it. Still, if you face any kind of difficulty, kindly let me know. Now let us. Yeah, but children, before taking homework, there was one topic remain in your book. एक topic था, एक question था actually, that was not particularly topic. Drawing of bar graph. That I have already explained to you कि bar graph को कैसे draw करते हैं. But if someone has missed that thing, so here I am again telling you how to draw the bar graph. ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं. आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 2 दैट वाज बेस्ड ऑन ड्राइंग बार ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 2 वाज द नेशनल हाईवे NH बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी passes through UP, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. The approximate length of this NH is different state given below. जो भी NH की जो डिफरेंट लेंथ है वो यहाँ पर दी हुई है. और ये NH क्या है कि नेशनल हाईवे रोड होती है जो काफ़ी सारे सिटीज़ को या स्टेट्स को कनेक्ट करती है. ये जो NH है ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और किसको कनेक्ट करता है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस NH इज डिफरेंट स्टेट गिवन बिलो. जो NH की जो डिफरेंट लेंथ है जो पर्टिकुलर स्टेट्स में से होके जाती है उनकी आपको टेबल वाइज यहाँ पे गिवन है. सो हियर इज द लेंथ स्टेट. हियर लेंथ यूपी 150, महाराष्ट्र में 250, कर्नाटका में 100, तमिलनाडु में 600. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. आपको क्या बनाना है? बार ग्राफ. लेट अस सी. Here is the table and in this plot we are going to draw the bar graph. As I have told you, we have to draw bar graph with the help of 2 lines. One is slipping line or you can say horizontal, and second is standing line or vertical line you can say. After that, on the slipping line we write the names, on the standing line we write the numbers.
So these are the numbers, these are the names of the state: UP, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Children, here I have written these in slant form, as अगर आप इसको straight लिखते हैं ऐसे horizontal form में तो पूरा नहीं आता, तो जब big names होते हैं तो आप ऐसे write कर सकते हो, okay, sleeping position में. And this side we will represent the numbers. Marking करेंगे सबसे पहले आप equal gaps per one. Children, let us see which is the least number here. It's 100. Which is the greatest number here? 600. Means 100 to 600 आप numeric यहाँ पे आप marking करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. Fine. Now let us do marking 100, 200, 300, 400, 500 and 600. Okay. इक्वल गैप्स पे आप इन चारों को ही डिनोट नहीं कर सकते. 150 डिनोट किया, 250, 100 एंड 600. यू हैव टू सी देयर विच इज़ द लीस्ट नंबर, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सबसे छोटे से और सबसे बड़े नंबर तक आपको ड्रॉ करने होंगे नंबर्स, आपको वहाँ पे नंबर्स राइट करने होंगे. ओके. इन बिटवीन कोई नंबर लाया करता है तो अकॉर्डिंगली वी विल मेक द पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ. गॉट इट. सो देयर इज नो इशू, आपको अकॉर्डिंगली ही राइट करने हैं. सो चिल्ड्रन, इन बार ग्राफ सेटिंग स्केल इज इम्पॉर्टेंट. स्केल को सेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ओके. अगर आपने स्केल को सही सेट किया इट मीन्स यू हैव डन हाफ ऑफ द वर्क करेक्ट. इफ़ यू डन द स्केल रॉन्ग इट मीन्स आपका बार ग्राफ भी रॉन्ग हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर क्लियरली मेजर्ड स्केल. आप अच्छा सही स्केल सेट कर रहे हो. इट मीन्स उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आप ऐसे ही रैंडमली ही नहीं राइट कर दोगे. आपको उसमें जो ड्यूरेशन, जो भी आपके नंबर्स में जो ड्यूरेशन होगी वो करेक्ट होनी चाहिए. ओके. मीन्स उसमें जो गैप होता है नंबर्स में, जो भी वो 100 जैसे 200, 300, जो इनमें 100 नंबर्स का गैप है तो वो करेक्ट होना चाहिए. ओके. नाउ लेट अस ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर यूपी. The length of NH in kilometer of UP is 150. There is no 150, but 150 lies in between 100 and 200. ये इन दोनों के बीच में लाया करता है तो आपका बार ग्राफ भी इन दोनों के बीच में ही आप सेट करोगे. इट वुड बी लाइक दैट. ये ना 100 है ना 200 है, इवन उसके बीच में है और 150, 100 और 200 के बीच में ही लाया करता है. नाउ सेकेंड वन इज ऑफ महाराष्ट्र. Maharashtra's length is 250. So there is no 250 scale. Even there is 300 and 200. So 300 और 200 के बीच में ही हमारा 250 लाया करता है. That means it would be like that. 250 का स्केल जो आपने बनाया है, ड्रॉ किया है, वो ऐसे लगेगा. You can shade it with your pencil. Otherwise you can do color here. It's up to you. नेक्स्ट इज कर्नाटका. कर्नाटका 100 है. 100 का स्केल आपके पास गिवन है. सो यू कैन ड्रॉ हेयर कर्नाटका's बार ग्राफ. यू कैन मैच विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑल्सो. नेक्स्ट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु लेंथ इज 600 किलोमीटर. So 600 kilometer lies on the scale here. These are in kilometer. Okay. जो हमारी लेंथ है ये किस में, किलोमीटर में. तो आप क्या करेंगे, 600 का आप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. इट इज़ मैचिंग ऑन 600. ओके चिल्ड्रन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ बार ग्राफ. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. इट्स वेरी इजी. यू कैन डू इट वेरी इजीली इफ you set up a scale properly. So it's very easy to do. Got it, children? I hope you have understood it. Still, if you have any confusion, kindly let me know. I will sort out your all doubts. Now let us take the homework. And your homework is do assignment number 1, that is uploaded on Edquire. You can take from there. And you have to submit the solution on my email ID. Okay, children? So I hope you have understood it. Now let us meet in the next video. Till then, children, bye bye. Take care yourself.